কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। Health Express brought নমস্কার, দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, সঙ্গে রয়েছে আমি সুমিত। শুরু করছি হেলথ এক্সপ্রেস। প্রতিবারের মতো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা এই বিশেষ সময়টিতে আপনাদের কাছে চলে আসি, আলোচনা করি শরীরের একাধিক রোগ ব্যাধি নিয়ে, কোথায় কি করলে শরীর সুস্থ রাখা যায়। পাশাপাশি আমাদের শরীর তো একটা মন্দির, তাই শরীরকে যদি আমরা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারি তাহলে শরীরে কিন্তু সেই রোগটি আরও বড় জটিল আকার ধারণ করে। যাতে সেটা জটিল আকার ধারণ না করে সেই জন্যই একদম তৃণমূল স্তরে তাকে যদি শেষ করা যায় তাহলেই কিন্তু সেই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা হেলথ এক্সপ্রেসে আপনাদেরকে সমাধানের রাস্তা বলে দিই। আমরা হেলথ এক্সপ্রেসে আপনাদেরকে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি এবং আপনাদের যাতে সমস্যার সমাধান হয় সেই জন্য বিখ্যাত ডাক্তারবাবু যারা চিকিৎসক রয়েছেন তাদের পরামর্শ নিই। এই মুহূর্তে এমনই একজন ইউরোলজিস্ট আমার সঙ্গে রয়েছেন, ডক্টর অভিষেক ঝা। আমি অভিষেকবাবু আপনাকে স্বাগত জানাবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আজকে মূলত আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে কিডনিতে স্টোন। আমরা জানি যে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা বা উপোস করা বা দীর্ঘ সময় একটা খাওয়া দাওয়াকে ডিসিপ্লিনের মধ্যে না নিয়ে আসা বা উল্টো পাল্টা জিনিস খাওয়া, ফাস্টফুড খাওয়া, এরকম বহু কিছু কারণের জন্য, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খাওয়া, এই সব কারণের জন্য আমরা অনেক সময় দেখেছি আমাদের হঠাৎ করে একটা বাঁ দিকে অসহ্য যন্ত্রণা বা ডান দিকে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো কিডনির ঠিক আশেপাশে। তারপর বুঝতে না পেরে আমরা ডাক্তারদের কাছে চলে যাই এবং যখন আমরা চিকিৎসাটা একটা স্টেজে গিয়ে পৌঁছই তখন বুঝতে পারি সেখানে ছোট 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 কিছু স্টোন আকার ধারণ করেছে। কখনো কখনো সেই স্টোনগুলির আকার বড় হয়ে যায়, 5.6 cm, কখনো পর্যন্ত আবার 7 cm পর্যন্ত হয়। তখন কিন্তু কাটতে হয়, অর্থাৎ অপারেশন করতে হয়। শল্য চিকিৎসা তো অবশ্যই করতে হয়, কিন্তু এখন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেক সময় দেখা যায় মাইক্রো সার্জারির মাধ্যম দিয়েও সেই স্টোনগুলিকে সেখানে ভেঙে দেওয়া হয় বা গলিয়ে দেওয়া হয় ওষুধ দিয়ে, যাতে সেটাকে যদি সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে যাতে ওষুধ দিয়ে সেটাকে গলিয়ে দেওয়া যায় সে চেষ্টাও করা হয়। তার জন্য একাধিক পথ্য রয়েছে, তার জন্য একাধিক মেডিসিন রয়েছে। কি সেই মেডিসিনগুলি, কিন্তু যাতে সেটা না হয় সেটা নিয়ে মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের এই হেলথ এক্সপ্রেসে। আমি চলে যাবো একটু অভিষেক ঝা, ডাক্তার অভিষেক ঝা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ডাক্তারবাবু, আমাকে একটু বলুন যে এই যে কিডনিতে স্টোন বিষয়টা, পাথর বিষয়টা, এটা মূলত কি কি কারণের জন্য হয়? मेन तो किडनी में स्टोन बनने का कारण है पानी की कमी। यदि लोग कम पानी पीते हैं वो कारण है, और खाने में यदि नमक की मात्रा ज़्यादा हो या मीट मटन वगैरह ये ज़्यादा खाते हैं उसमें होता है। कैल्शियम यदि डाइट में अच्छी मात्रा में कैल्शियम नहीं लेते हैं उसकी वजह से भी किडनी में स्टोन बनने का खतरा रहता है। मेन कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए रोज़। यदि पानी की कमी होगी तो आपके वो अंदर जो खाने में मिनरल्स वो सब पानी की कमी से क्रिस्टलाइज करके वो किडनी में स्टोन बनाते हैं। और सैचुरेशन, यदि उनका सैचुरेशन पेशाब में ज़्यादा हो और पानी की कमी हो तो वो सैचुरेट होके फिर वो क्रिस्टल्स बनते हैं जो धीरे धीरे बड़े होके स्टोन बनते हैं। कभी वो स्टोन हार्ड हो सकते हैं, कभी वो सॉफ्ट हो सकते हैं, और उससे ये मुख्य कारण यही है किडनी में स्टोन बनने का। এই যে বলা হচ্ছে পাথর ঠিক মূত্রতন্ত্রের ভেতরে, মূত্রতন্ত্রের ভেতরে এটা কিভাবে আসে? ये जो किडनी का स्टोन जो है, ये स्टोन कभी कभी जो पेशाब की जो नल है, पेशाब की जो नल, ये थली जो है वहाँ से आके कभी कभार दिखता है कि वो अटक जाता है, कि उसका साइज मैटर करता है। कभी कभार वो एकदम जो प्राथमिक स्टेज जो है वहीं पे उसको कैसे ख़त्म किया जाए और ताकि वो बड़ा ना हो, उसके लिए क्या क्या? कभी कभी वो स्टोन किडनी में बनता है, और या कभी कभी वो डायरेक्ट पेशाब की नली जिसको यूरेटर बोलते हैं उसमें भी बन सकता है। यदि वो यूरेटर में बनता है और वो यूरेटर को पूरी तरह से जाम कर दे, ब्लॉक कर दे, तो किडनी में जो पेशाब बनता है वो नीचे उतरता नहीं है, जिसके चलते किडनी में सूजन होता है
और दर्द होता है। और वो यदि स्टोन का साइज़ पे डिपेंड करता है और वो कहाँ पे फंसा हुआ है, यदि पेशाब की नली यूरेटर में ऊपर की भाग में फंसा हुआ है, बीच में है या नीचे है, यदि उनका साइज़ 5 mm से ज़्यादा हो तो चांस रहता है कि वो पेशाब की नली को ब्लॉक करेगा और वो निकलेगा नहीं ऐसे। और कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन किडनी में बनते हैं और वो धीरे धीरे कभी पेशाब की नली में नीचे उतर जाते हैं यूरेटर में, उससे भी वो ब्लॉक करते हैं यूरेटर को, जिसके चलते दर्द होता है, किडनी में सूजन होती है और ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। वो यूरेटर में बनता कैसे बनता है ये? यूरेटर में ये स्टोन बन जाता है कभी कभार? हाँ, यूरेटर में क्या है कि यदि आप पानी की मात्रा शरीर में कम हो, आप जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन हो, जहाँ पे स्वेटिंग होता है, गर्मी में यदि इंसान को ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो पानी का लॉस होता है, वो सब कंडीशन में ये स्टोन बनने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि वो क्या होता है कि हमारे पेशाब में जो हम खाते हैं वो सारे मिनरल्स रहते हैं, यदि यूरिन कम रहेगा तो उनका उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो क्रिस्टलाइज करेंगे, वो सारे फॉर्म क्रिस्टल्स बनेंगे और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ेगा और वो स्टोन बन जाएंगे। और फिर वो कभी किडनी में रहते हैं, कभी पेशाब की नली यूरेटर में, कभी पेशाब की थैली में, ये सारी जगह स्टोन रह सकते हैं। ये इन्फेक्शन भी एक कारण है। यदि बार बार आपको किडनी का, यूरेटर का ये सब इन्फेक्शन होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये सब कारण से भी कभी कभी स्टोन बनता है, जिसमें इन्फेक्शन स्टोन जैसे स्ट्रूवाइड स्टोन होता है, बड़ा स्टोन बनता है, वो इन्फेक्शन से होता है, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ई कोलाई, ये सब कारण से भी स्टोन बनने का चांसेस रहता है। या कभी मरीज़ को मान लीजिए पेशाब की नली यूरेटर में कोई रुकावट है, जैसे स्ट्रिक्चर बोलते हैं, और उसका पेशाब धीरे उसका नीचे उतर नहीं रहा है और किडनी में जमा है अंदर, तो उसके चलते भी स्टोन बनने का रिस्क रहता है। अच्छा डॉक्टर, ये जो कभी कभार देखता है कि खान पीन की बात आप कर रहे थे कि खान पीन के लिए भी कभी कभार होता है, पर एक ही जैसा लाइफस्टाइल कुछ और लोग भी कर रहे हैं, उनको ऐसा कभी नहीं हो रहा है, ये क्यों होता है? ये डिफरेंस क्यों होता है? स्टोन का बहुत सारा मल्टीपल कारण है, खाना पीना भी एक कारण है, जेनेटिक भी कारण रहता है, कोई जेनेटिकली ज़्यादा प्रीडिस्पोज रहते हैं स्टोन के लिए। जैसे खान पान में है कि आपको पानी 2.5 से 3 लीटर रोज़ लेना है, आपको खाने में नमक कम रहना चाहिए, कैल्शियम का भी प्रॉपर मात्रा में आपको कैल्शियम लेना है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, क्योंकि यदि कैल्शियम की कमी होगी तो उसके चलते भी स्टोन बनने का खतरा रहता है। और प्रोटीन की भी मात्रा जो मटन में या ये सब में कम, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है वो सब। और ये सब कारण है। लाइफस्टाइल में यदि आपका वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी भी एक कारण है, उन मरीज़ों में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए ये सारे मुख्य कारण हैं। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों का लाइफस्टाइल सेम है, फिर भी किसी को स्टोन बनता है, किसी को नहीं बनता है। उसके बहुत कारण है, मेनली जेनेटिक कारण है, और अंदर भी है कि किडनी का क्या उसका एनाटमी है, और वो उसकी जो पेल्विक एलिशियल सिस्टम है, उन सब पे भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी को स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग देखते हैं कभी कभार क्या होता है कि ये जो किडनी में स्टोन बनता है या फिर यूरेटर में स्टोन बनता है, ये स्टोन एक्चुअली ये होता क्या है? ये मतलब हम लोग के शरीर से ही कुछ एलिमेंट्स लेके ये बनता है? हाँ, मेनली क्या होता है, 4-5 तरह के स्टोन्स है। कैल्शियम स्टोन्स मोस्ट कॉमन जो कैल्शियम स्टोन्स है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, स्ट्रूवाइड स्टोन्स होते हैं, जो इन्फेक्शन जिन मरीज़ों में बहुत बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है किडनी में, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह, तो उससे भी ये स्टोन बनते हैं। तो जैसे ये जो हम जो शरीर में जो खाना खाते हैं उसी सब से, वो मिनरल्स वगैरह से ये सारा चीज़ स्टोन बनता है। जैसे कैल्शियम स्टोन्स हो गए, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रूवाइड स्टोन्स, ये सारे। आजकल के जो बच्चे लोग हैं, कभी कभार देखा जाए कि उन लोग को भी स्टोन हो रहा है, कि अब बच्चे लोगों को भी स्टोन होने का चांस रहता है क्या? स्टोन किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चे हो, एडल्ट हो या बूढ़े लोग, किन्हीं में भी स्टोन होने का रिस्क है। बच्चों में भी होगा यदि उनका लाइफस्टाइल या खाना पीना ये सब कारण है, या उनको जेनेटिक कोई कंडीशन है। जैसे बहुत सारे जेनेटिक कंडीशन होते हैं, जैसे सिस्टीनूरिया हो गया, तो उनमें क्या होता है कि सिस्टीन के स्टोन्स बनते हैं किडनी में,
ऑक्जेलेट ज़्यादा उनके यूरिन में ऑक्जेलेट है, जैसे हाइपर ऑक्जेलूरिया, तो ऑक्जेलेट ज़्यादा यदि यूरिन में आएगा तो कुछ कुछ जेनेटिक कंडीशन है उसमें भी स्टोन्स होते हैं, तो बच्चों में भी हो सकता है। जैसे पैराथायरॉयड एक ग्लैंड, थायराइड के पास में ही पैराथायरॉयड करके एक ग्लैंड होती है, यदि वो पैराथायरॉयड का भी कोई एडिनोमा हो या उससे यदि वो हार्मोन ज़्यादा बनाए तो उसमें भी कैल्शियम स्टोन्स बनने के रिस्क रहते हैं। तो बहुत सारे जेनेटिक कंडीशन है, बहुत सारा जिसमें जो बच्चों में भी स्टोन बना सकते हैं या कुछ लाइफस्टाइल जो है उस कारण से भी बच्चों में स्टोन हो सकता है। हम लोग तो ये अब डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टोन क्यों हो सकता है, ये सब चीज़ को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पर अगर देखा जाए कि ये मतलब अगर किसी को हो गया, मान लीजिए किसी को पत्थर हो गया किडनी में या फिर यूरेटर में किसी को पत्थर हो गया, तो ये होने के बाद क्या क्या रिस्क रहता है, ये भी थोड़ा बताइए। स्टोन होने के बाद क्या है कि यदि हम उसका समय से उसका उपचार नहीं करें, ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो उसके चलते बहुत सारा रिस्क है, क्योंकि यदि आपके यूरेटर में या पेशाब की नली में वो स्टोन फंस जाए और बहुत लंबे टाइम से वो ब्लॉक करके है तो आपके किडनी में पस हो सकता है, मवाद बन सकती है, इसको पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और उसके चलते मरीज को बुखार आएगा, उसको ठंडी लगेगी और उसके बाद उसका जो खून में क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाएगा। इसके चलते आपका किडनी भी डैमेज होने का रिस्क रहता है। यदि आप स्टोन का समय से उपचार नहीं करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो किडनी को भी नुकसान करता है और आपका पेशाब बनना कम हो जाएगा, आपका पेशाब आप पेशाब कम जाओगे, आप जिसमें एन्यूरिया भी हो सकता है, पेशेंट को किडनी में पस हो सकता है, ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मरीज़ को यदि वो स्टोन का समय से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो इसके लिए किडनी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली किडनी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। यदि हम स्टोन को नेग्लेक्ट करें और हम सोचें कि ये स्टोन है, हम दवाई खा के, दर्द की दवाई खा के उसको टालते रहें तो वो धीरे धीरे वो किडनी को पूरा डैमेज हो जाता है। इवेंचुअली तो वो किडनी पूरी ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में तो हमें पूरी किडनी निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो स्टोन की वजह से वो किडनी पूरी डैमेज हो जाती है और वो किडनी काम नहीं करती है, और तो किडनी ख़राब होने का, किडनी डैमेज होने का भी रिस्क है यदि हम स्टोन को टाइम से ट्रीट नहीं कराएं तो। परिवार के किसी को पहले हुआ है किडनी में स्टोन, उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है, ऐसा कुछ संभावना होता क्या? हाँ, यदि फैमिली में किसी को स्टोन है तो रिस्क रहता है कि उनका जैसे फर्स्ट डिग्री जो फैमिली में है, यदि उनको किसी को स्टोन है तो हमें स्टोन होने का रिस्क है, क्योंकि ये कुछ में जेनेटिक उस कंडीशन में वो होता है, उनको भी स्टोन होने का बहुत रिस्क है फैमिली में यदि किसी को है तो। आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि पानी कम पीने के कारण भी कभी कभार किडनी में स्टोन हो सकता है, तो कम से कम एक आदमी को दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, और अगर किसी को स्टोन हो गया तो उसको किस तरह से पानी कंज्यूम करना चाहिए? कम से कम 2.5 से लेकर 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए लोगों को, और यदि वो डिपेंड करता है, यदि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ उससे भी ज़्यादा भी पीना चाहिए, क्योंकि आपका फिर वो पानी पसीने में, स्वेटिंग में वो लॉस हो जाता है, तो उसको उस पानी को आपको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बहुत ही कॉमन कॉज है, बहुत ही जो स्टोन बनने का। पानी की यदि कमी होगी शरीर में, आपका यूरिन यूरिन आउटपुट भी यदि कम होता है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर डेली यूरिन आउटपुट होना चाहिए। यदि यूरिन आउटपुट भी कम होगा, पानी की कमी होगी, तो ये सारा में स्टोन का रिस्क रहता है, स्टोन बनने का। आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि खाने पीने के बारे में आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो कभी कभार माछ मछली जो लोग ज़्यादा खाते हैं, ये आप बोल रहे कि उन लोगों को भी चांसेस रहता है। ये माछ मछली किस तरह से स्टोन बनाते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है कि वो यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक करते हैं, तो फिर एसिडिक यूरिन में स्टोन बनने का रिस्क बढ़ता है। जैसे कैल्शियम स्टोन्स हो गए, यूरिक एसिड स्टोन्स हो गए, ये एसिडिक यूरिन में उनका कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल्स है, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, वो बढ़ते हैं, क्योंकि वो मांस मछली खाने से एसिड लोड बढ़ता है और यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। इन कारणों से यूरिन में स्टोन बनने का रिस्क रहता है। ऐसा नहीं है कि मांस मछली नहीं खाना है, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में खाने का उसमें है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर आप जो बोल रहे थे कभी कभार, कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि मांस मछली या फिर पानी के कारण स्टोन हो सकता है। कुछ लोगों को दिखा गया है कि वो लोग जो लोग वेजिटेरियन है, वो लोग वेजिटेरियन है या फिर वो लोग पानी भी ठीक तरह से पी रहे हैं, फिर भी उन लोग को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है।
ये किस लिए होता है? तो क्योंकि स्टोन बनने का बहुत सारा कारण है, ऐसा नहीं है कि यदि वो पानी अच्छे से पिए और वेजिटेबल्स खाए तो दूसरे कारण से भी स्टोन बन सकता है। जिस या तरह से? जैसे मोटापा एक कारण है, यदि वो ओबेसिटी है, मोटापा है, और क्या कहते हैं कभी कभी कोई जेनेटिक कंडीशंस में भी होता है, कभी कोई दवाई भी खाते हैं यदि वो मरीज, तो कुछ कुछ मेडिसिन भी है जो स्टोन्स बनाते हैं, जैसे उनके साइड इफ़ेक्ट है कि वो उससे भी स्टोन्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पानी कम पियो या आपका इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी कारण से, तो उन सारा वो भी स्टोन बनने का रिस्क फैक्टर है। इसीलिए आप स्टोन किसी एक कारण से नहीं बनता है, बहुत सारे कारण हैं यदि स्टोन बनने का। ज़्यादातर नमक खाना ये भी स्टोन के कारण होता है क्या? हाँ, क्योंकि नमक कम रहना चाहिए, क्योंकि उसके चलते क्या होता है कि यूरिन में फिर कैल्शियम का सिक्रीशन बढ़ता है, उसके चलते कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं। यदि आपके डाइट में नमक ज़्यादा है तो उसके चलते कैल्शियम के जो होते हैं उनका यूरिन में सिक्रीशन होता है, फिर वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से मिलके या फॉस्फेट से मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट या फॉस्फेट के स्टोन्स बनाते हैं। और इसीलिए नमक खाना है, लेकिन उसको भी एक ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अच्छा, हम लोग आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि कभी कभार कुछ दवाई ऐसा होता है कि जिस दवाई से कारण भी किडनी में स्टोन हो सकता है। ये अगर होता है तो फिर वो दवाई अगर इमरजेंसी दवाई हो फिर तो वो कंज्यूम भी करना होगा, और अगर स्टोन होता है तो उसका रिस्क भी रह जाता है। तो कौन सा दवाई, किस प्रकार की दवाई से हम लोग को सावधान रहना चाहिए? जैसे बहुत लोग एक्सेस क्या विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट्स टैबलेट लेते हैं, वो एक कारण है। और जैसे कुछ जैसे HIV के पेशेंट्स रहते हैं, उनमें इंडिनावीर करके दवाई चलती है, जो दवाई ज़रूरी वो भी स्टोन बनाता है। या फ्यूरोसेमाइड जो लूप डाययूरेटिक्स है, उससे भी वो सब में भी स्टोन बनने का रिस्क रहता है। और कैल्शियम कंटेनिंग जैसे एंटासिड्स वगैरह भी खाते हैं। यदि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक दो खाओगे तो उससे, यदि आप ज़्यादा मात्रा में या बहुत लंबे समय से यदि आप उसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो चांसेस रहते हैं इस सब में कि आपको स्टोन बनने का रिस्क रहता है। और ये सारे मुख्य यही दवाइयाँ हैं जिनमें वो स्टोन बनने का रिस्क रहता है। अगर किसी इंसान को एक बार स्टोन हो गया तो फिर से उसको स्टोन हो सकता है, ऐसा कोई रिस्क हो सकता है क्या? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। जैसे एक बार स्टोन हो गया तो फर्स्ट ईयर में भी उनको 14 से 15% रिस्क रहता है दोबारा स्टोन होने के, और इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 35%, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में उनको 50 to 60% चांस है कि यदि एक बार आपको अभी स्टोन हुआ है तो आज से 10 साल के बाद भी आपको 50 से 60% चांस है कि वो दोबारा स्टोन हो सकता है, रिस्क रहता है। पर इसका जो दर्द होता है, क्योंकि मुझको खुद भी एक बार हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका जो दर्द ये एकदम सहन करने से सहन नहीं होता, एक्सट्रीम लेवल पे दर्द होता है। तो ऐसे हालत पे लोग कभी कभार क्या करता है कि दर्द का कुछ टैबलेट ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, इससे क्या कुछ रिलीफ हो सकता है? ओरिजिनली यदि वो आपकी जो स्टोन है या पत्थरी जो है, यदि पेशाब की नली में, यूरेटर में फंस जाए, या किडनी और पेशाब की नली का जो, जहाँ से पेशाब की नली किडनी से जुड़ती है, जिसको पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं, यदि वहाँ पे फंस जाए तो वो क्या होता है कि किडनी में पेशाब जो बनता है वो नीचे निकलता नहीं है, वो किडनी में प्रेशर को बढ़ाता है, तो उसका जो है वो स्ट्रेच होता है किडनी, जिसकी वजह से हमको पेन महसूस होता है। तो यदि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप दर्द की दवा डेफिनेटली आपको टेम्परेरी थोड़ा पेन कम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको उपचार, सर्जरी, जो ऑपरेशन है वही करके आप वो स्टोन, जब तक वो स्टोन रहेगा वो प्रॉब्लम आपको होगी, इसीलिए उसका टाइम से ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। कभी कभार कुछ सिम्टम दिखता भी नहीं है, ना दर्द होता है ना उसको कुछ और प्रॉब्लम होता है, फिर भी देखा जाता है कभी कभार उनको स्टोन है, तो ऐसे हालत में क्या किया जाए, वो समझेंगे कैसे? कभी कभी क्या होता है कि किडनी में यदि छोटे स्टोन्स रहते हैं और वो, ये नॉर्मल है क्या, हर एक के शरीर में रहता है? नहीं, सबके शरीर में नहीं रहता है। यदि जिनको स्टोन रहते हैं, यदि वो फंसते नहीं है पेशाब की नली में और किडनी में ऐसे ही पड़े हुए हैं छोटे स्टोन, जैसे किडनी में भी बहुत सारा हिस्सा है, जैसे अपर कैलिक्स हो गया, मिडिल कैलिक्स, लोअर कैलिक्स, कभी कभी वो कैलिक्स में रहते हैं, लोअर कैलिक्स वगैरह में, तो अपने को उसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन वही है, यदि वो धीरे धीरे वो स्टोन का साइज इंक्रीज करता है, वो बड़ा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो किडनी में बार बार इन्फेक्शन करता है, पाइलोनेफ्राइटिस या जो भी होता है वो इन्फेक्शन करता है। और यदि वो स्टोन जो अभी आपको नहीं फंसा हुआ है, यदि वो किडनी के अंदर मूव करके वो फंस जाए कभी पेशाब की नली वगैरह में, तो उससे फिर प्रॉब्लम हो सकता है, दर्द बढ़ सकता है।
छोटे स्टोन्स रहते हैं तो वो कभी कभी मालूम नहीं चलता है और वो दर्द भी नहीं होता है इंसान को, लेकिन वो जब बड़ा होता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभार देखा जाता है कि यूरिन से किसी किसी को ब्लड आता है अगर स्टोन रहता है तो ये ब्लड अगर स्टोन रहता है इसीलिए ब्लड आ रहा है या फिर इसकी और भी कुछ कारण हो सकता है? पेशाब में ब्लड आने का तो बहुत सारा कारण है, स्टोन भी एक कारण है। स्टोन वाले मरीजों में भी पेशाब में ब्लड आता है, लेकिन ब्लड आने के लिए तो यदि आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। या तो यूटीआई में भी आ सकता है, पेशाब का उस किडनी का इन्फेक्शन में आ सकता है, या प्रोस्टेट के मरीज़ों में भी पेशाब आता है, या पेशाब की थैली में कैंसर हो, गठान हो पेशाब की थैली में, तो भी उन मरीज़ों में आ सकता है। लेकिन आपको ये कैसे समझ में है कि आपको पेशाब में खून आ रहा है तो वो स्टोन की वजह से, तो और भी एसोसिएटेड रहते हैं। यदि दर्द के साथ आपको कमर में पीछे के हिस्से में दर्द हो रहा है, उसके साथ पेशाब में खून आ रहा है, तो मोस्टली ये चांसेस रहते हैं कि हो सकता है ये स्टोन की वजह से हो। किडनी के ट्यूमर में, किडनी कैंसर में भी पेशाब में खून आ सकता है। तो बहुत सारा कारण है पेशाब में खून आने का, लेकिन स्टोन में भी पेशाब में खून आ सकता है। ऐसा कौन सा कारण है जो जिस चीज़ को देख के अब मरीज को ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है, अभी इसको तुरंत व्यवस्था करना चाहिए, या तो ऑपरेशन करना चाहिए या फिर इसको हटाने का कोई व्यवस्था करनी है? एक्सट्रीम लेवल में क्या क्या दिखाई देता है? यदि मरीज को दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है, बार बार उल्टियाँ हो रही है, या पेशाब नहीं आ रहा है, पेशाब कम हो रहा है, ये सारा इमरजेंसी कंडीशन है। इसका मतलब है कि वो जो पथरी है या स्टोन है वो पेशाब की नली में या कहीं फंस गया है, जिसके चलते वो इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे कंडीशन में इमरजेंसी में ये कंडीशंस हैं जिसमें आपको तुरंत उसमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन सर्जरी करने की ज़रूरत है। मरीज़ का क्रिएटिनिन बढ़ जाए, मरीज़ को पेशाब कम हो, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो जो दवाइयों से भी ना ठीक हो, बार बार उल्टियाँ आए, ये सारे कंडीशन हैं कि वो स्टोन बहुत स्टोन फंस गया है यूरेटर में या किडनी में कहीं, जिसके चलते उनकी किडनी भी डैमेज हो रही है, और इन कंडीशन में ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। किडनी का स्टोन का डायग्नोसिस प्रोसेस क्या है? डायग्नोसिस के लिए तो पहले मरीज़ का हिस्ट्री है, पहले आप उनसे पूछिए कि आपको ये क्या समस्या है, दर्द कब से है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, फिर उसका एग्जामिनेशन है, फिर टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फिर हम उसमें इमेजिंग में भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सारे कुछ कंबाइन करके हम फाइनली एक डायग्नोस करते हैं कि ये मरीज़ को स्टोन है, कहाँ पे है और किस आकार का, साइज़ का है। ये अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के बारे में आप बोल रहे थे डॉक्टर, तो ये अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन का भूमिका क्या रहता है? प्राइमरली जो पहले यदि कोई मरीज़ आता है हमारे पास तो हम उनको अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक इसमें रेडिएशन का भी रिस्क नहीं रहता है, और ये पहले करते हैं जिसे, तो उसमें हम किडनी में स्टोन है या पेशाब की नली यूरेटर के ऊपर के हिस्से में स्टोन है, ये सारे कंडीशन को उसमें डायग्नोस हो जाता है अल्ट्रासाउंड में। किडनी का में सूजन है वो भी हमें मालूम, स्टोन की वजह से जो किडनी में सूजन है वो भी हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाती है। किडनी का साइज़, किडनी कैसे काम कर रही है, उनका पैरेन्काइमल थिकनेस वगैरह सब हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। तो एक फ़र्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आगे उसको गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए सीटी स्कैन है, क्योंकि सीटी स्कैन में हमें किडनी में स्टोन का साइज़, लोकेशन और वो हार्ड स्टोन है या सॉफ्ट स्टोन है, वो सब कुछ हमें सीटी स्कैन में जो कन्फर्मेटरी हमें पता चलता है। कभी कभार देखा जाता है डॉक्टर, हम लोग আমরা যেটা বুঝতে পারছি অন্তত যাদের এই মুহূর্তে অসহ্য যন্ত্রণা চলছে, কিডনিতে যারা একটু সমস্যায় ভুগছেন বা যাদের ইউরিন ঠিক করে হচ্ছে না, তারা অবশ্যই বাড়িতে না থেকে দ্রুততার সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিন, কারণ আপনারা শুনলেন এগুলি সব কিছুই হচ্ছে কিন্তু কিডনি স্টোনের একটা অন্যতম লক্ষণ। আর কিডনি স্টোনকে যদি আমরা অবহেলা করি তাহলে তার পরিপ্রেক্ষিতে কী হতে পারে সেটা ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ আগেই আপনাদেরকে বললেন। গোটা কিডনিটাই অনেক সময় কেটে বাদ দিতে হয়, যে এত বড় রিস্ক যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেক্ষেত্রে কোনো অবহেলা না করাই ভালো। এবং এই কারণের জন্যই বারবার করে বলা হচ্ছে পর্যাপ্ত জল খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। পর্যাপ্ত জল পান করলে অবশ্যই এটা অনেকাংশে ঠিক করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এবং আমরা বারবার করে দেখেছি, हम लोग देखते हैं डॉक्टर कि यूरिन टेस्ट दिया जाता है, ब्लड टेस्ट दिया जाता है। ये ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में क्या क्या देखते हैं आप लोग?
ब्लड टेस्ट पे हम पहले सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो उसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, मरीज़ का हीमोग्लोबिन क्या है, टोटल लिकोसाइट काउंट देखते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टोन के मरीज़ों में यदि बहुत लंबे टाइम तक से किडनी स्टोन है तो उनको इन्फेक्शन या कभी कभी उनको किडनी में मवाद बन जाए, पस बन जाए, जैसे पायोनेफ्रोसिस, तो उन सब कंडीशन में लिकोसाइट बढ़ जाता है, टोटल लिकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। यदि हम ये सारा ब्लड टेस्ट में देखते हैं, फिर हम उसमें क्रिएटिनिन कराते हैं, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन भी यदि नॉर्मल रेंज में है तो ठीक है, यदि क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है स्टोन की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, इसके चलते ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ये कराते हैं। फिर यूरिन टेस्ट कराते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। यदि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में भी हमें ल्यूकोसाइट्स, पस सेल्स या ब्लड वगैरह मिलते हैं तो ये सब अपने को डायग्नोसिस करने में मदद करती है कि शायद ये स्टोन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। বেশ, আমরা আলোচনা করছি কিডনিতে স্টোন কি কারণের জন্য হয় এবং তার প্রতিরোধের উপায় কি কি রয়েছে, কিভাবে তার চিকিৎসা করা সম্ভব, এই সব কিছু নিয়ে আমাদের আলোচনা এখনো পর্যন্ত বাকি রয়েছে। আমরা ডাক্তার অভিষেক ঝার কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জানবো এই সম্পর্কে। তবে এখন সময় হয়ে গেছে একটা ছোট বিরতির, ফিরে আসছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। ফিরে এলাম হেলথ এক্সপ্রেসে। আমরা আলোচনা করছি কিডনি স্টোন নিয়ে, সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর অভিষেক ঝা, প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট। আমি চলে যাব অভিষেক ঝার কাছে। আমরা আলোচনা করব कि এবার स्टोन कंपोजिशन নিয়ে। ऐसा हम लोग अगर जान जाते कि इस कारण से स्टोन हो सकता है, स्टोन का कंपोजिशन अगर हम लोग जान जाते तो इससे क्या हम लोग फ्यूचर में स्टोन को रोध कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली रोक सकते हैं। यदि स्टोन का यदि हम एनालिसिस कराते हैं और उसमें हमें मालूम चलता है ये स्टोन किस से बना हुआ है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है या यूरिक एसिड स्टोन है या स्ट्रूवाइट स्टोन है, तो हम डेफिनेटली उसको फ्यूचर में रोक सकते हैं। ये क्योंकि यदि यूरिक एसिड जो स्टोन्स होते हैं, यदि यूरिन ज़्यादा एसिडिक होती है उनमें बनता है। उसमें क्या होता है, एल्कलाइज़र जैसे पोटेशियम साइट्रेट सिरप वगैरह लेने से वो स्टोन भी डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो यूरिन में निकल जाते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन मतलब इन्फेक्शन स्टोन्स वगैरह, तो हम उनको ऐसा कह सकते हैं कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन कम होना चाहिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम होना चाहिए, तो ये फ्यूचर में उसको प्रिवेंट करने में ये रोकता है। ये ऑक्सलेट स्टोन्स में है कि कुछ खाना है जिसमें हमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे पालक हो गया, कुछ साग सब्जी है उसमें, तो उसका भी हम कम मात्रा में लें तो वो उसको भी हम रोक सकते हैं। या कैल्शियम की कमी, यदि हम डाइट में कैल्शियम नहीं ज़्यादा ले रहे हैं, दूध दही ये सब कम ले रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनने का रिस्क रहता है, तो उनको हम ऐसा
उनको डाइट में कैल्शियम अच्छे से लेना चाहिए और ऑक्जेलेट रिच जो फूड रहता है वो थोड़ा कम खाना चाहिए, तो उससे उनको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स कम बनने का रिस्क रहता है। इसीलिए डेफिनेटली हम स्टोन के एनालिसिस से हम ये जान पाते हैं कि स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, तो हम फ्यूचर में उसको उस तरह से उनको सलाह दे सकते हैं ताकि उनको फ्यूचर में स्टोन ना बने। आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि यूरिक एसिड से कभी कभार स्टोन बनता है। अगर यूरिक एसिड से, ये यूरिक एसिड के लिए आलोचना करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। पर यूरिक एसिड के कुछ दवाई होते हैं, हम अभी टेलीविजन में उस दवाई का नाम नहीं ले रहे, हालांकि सबको पता है कुछ खास दवाई होते हैं यूरिक एसिड के लिए। किसी को अगर यूरिक एसिड है उसको स्टोन होने का संभावना ज़्यादा होता है क्या? हाँ, संभावना ज़्यादा। से गाउट के मरीज़ हैं जिनको पेशाब में यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, तो उनको डेफिनेटली वो यूरिक एसिड स्टोन्स बनने का रिस्क रहता है। तो उनमें क्या है कि उनको हम पेशाब में यदि उनके एसिडिक भी ज़्यादा है तो उसमें भी वो यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा, तो उनको कुछ एल्कलाइज़र सॉल्यूशन वगैरह लेने से वो उनको वो स्टोन बनने का चांसेस कम होता है। ये इसीलिए यूरिक एसिड स्टोन फिर वो जो रहते हैं पेशाब में वो डिज़ोल्व होते हैं, फिर वो पेशाब में निकल जाते हैं। आज कुछ हम लोग आलोचना कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि अगर 5 mm से ज़्यादा हो तो उनको कभी कभार हम लोगों को सर्जरी करना पड़ता है, तो 5 mm से कम हो तो वो कभी कभार पेशाब से निकल भी जाता है। ये जब भी किडनी में स्टोन होता है वो हम लोग को कितना दिन के लिए उसको प्रतीक्षा करना चाहिए कि कब वो किडनी के ये पेशाब से निकले? हम लोग को पता कैसे चलेगा ये पेशाब से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पेशाब में क्या है कि यदि 5 mm से छोटा स्टोन है तो चांस है कि वो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। मैक्सिमम हम 4 वीक्स तक वेट कर सकते हैं कि 2 to 4 वीक्स कि वो निकल जाए। यदि 2 to 4 वीक्स के बाद भी यदि वो स्टोन नहीं निकल रहा है जो 5 mm से छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो पेशाब की नली में कहीं फंस गया है। कभी क्या होता है कि लंबे टाइम तक स्टोन यदि पेशाब की नली में फंसा है तो वहाँ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ईडिमा की वजह से और वो पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, जिससे और स्टोन निकलने का इम्पैक्ट हो जाता है स्टोन, तो फिर वो चांसेस और कम हो जाते हैं उनके निकलने का। हम मैक्सिमम 4 वीक्स तक वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली यदि 4 वीक्स तक यदि स्टोन नहीं निकलता है तो उसमें फिर सर्जिकल इंटरवेंशन ही करना सही रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं कि नहीं तो वो फिर वो धीरे धीरे वो उधर इन्फेक्शन करके किडनी डैमेज होने का भी रिस्क रहता है। कुछ लोग सर्जरी से जो लोग डरते हैं उन लोग तो चाहते हैं कि उन लोग को दवाई से ही ठीक किया जाए। ये स्टोन क्या हर स्टोन क्या दवाई से ठीक हो सकता है? दवाई से तो डेफिनेटली बहुत छोटा स्टोन हो तो उसमें हम दवाई यूज़ कर सकते हैं। 5 mm से छोटा हो, 4 mm, 3 mm का स्टोन हो पेशाब की नली में, उसमें भी डिपेंड करता है वो स्टोन कहाँ पे है। यदि पेशाब की नली में ऊपर के भाग में है तो उनका निकलने का चांस कम है। यदि पेशाब की नली के नीचे फंसा हुआ है और यदि वो 3-4 mm का है तो वो स्टोन दवाइयों से निकल सकता है, लेकिन सारे स्टोन दवाई से नहीं निकलते हैं। और यदि बड़ा स्टोन है तो फिर उसमें सर्जरी ही करना पड़ता है। अगर बड़ा स्टोन हो, मान लीजिए कि वो 5 mm से ज़्यादा है या फिर 5.7 है, किसी को 5.8 हो गया, तो कौन सी जगह में हम लोग को माइक्रो सर्जरी में सुविधा मिल सकता है और कौन सी जगह में हम लोग को माइक्रो सर्जरी भी कुछ नहीं कर सकता, उसको एकदम सर्जरी करना पड़ता है? नहीं, अभी क्या है कि अभी तो बहुत सब कुछ मिनिमली इन्वेजिव सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं स्टोन के, इसलिए कोई ऐसा कहीं चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कट करने का कहीं भी ज़रूरत नहीं है। जैसे और यदि 10 से 15 mm का स्टोन है तो उसमें हम ESWL भी कर सकते हैं। यदि वो स्टोन सॉफ्ट स्टोन है, किडनी में पेशाब की नली में ऊपर फंसा हुआ है, तो उस कंडीशन में ESWL जिसको शॉक वेव थेरेपी से वो स्टोन को तोड़ देते हैं और वो शॉक से और वो स्टोन निकल जाती है। फिर RIRS हो गया, जिससे लेज़र ट्रीटमेंट, जिसमें मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक का स्टोन है वो हम लेज़र से कर सकते हैं। ये लेकिन 2 सेंटीमीटर से यदि बड़ा स्टोन है तो उसमें डेफिनेटली PCNL सर्जरी है, वो भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। कमर के पीछे 1 सेंटीमीटर चीरा से आप दूरबीन से जाके वो पथरी को तोड़ के वो सब हम निकाल सकते हैं। इसीलिए अभी तो सारे स्टोन की जितने भी ट्रीटमेंट है सब मिनिमली इन्वेजिव है। कहीं भी कोई बड़ा चीरा, कहीं भी कोई शरीर में कोई बड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं है। RIRS तो पेशाब के नॉर्मल रास्ते से हम कर सकते हैं और PCNL में भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही चीरा लगता है। इसीलिए कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अब कि हम बहुत बड़ा सर्जरी, कोई बहुत बड़ा कट करने का ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, ये ESWL, ये यूटेरोस्कोपी, PCNL, इन सब में अंतर क्या है?
ESWL है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, मतलब कि आप उसमें शॉक वेव से स्टोन को तोड़ते हैं, जिसमें छोटे स्टोन जैसे मैक्सिमम 15 mm तक यदि किडनी में या पेशाब की नली में अपर यूरेटर में स्टोन होगा तो वो उसमें कर सकते हैं। और वो नॉन इन्वेजिव है, कहीं भी कोई भी कट नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो मशीन के नीचे आपको सोना है और वो शॉक वेव से वो पथरी को तोड़ सकते हैं। दूसरा है RIRS, जिसमें रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जो पेशाब के रास्ते आप वो स्कोप से फ्लेक्सिबल स्कोप से जाके लेज़र से उसमें स्टोन को तोड़ते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक के साइज़ का, लेकिन 15 mm तक का कर सकते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट है। फिर एक परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी PCNL, जिसमें कमर के भाग में एक सेंटीमीटर छोटे छेद से हम दूरबीन से जाके वो पथरी को तोड़ के पूरी पथरी निकाल के, इसमें रिज़ल्ट बड़े स्टोन्स में PCNL का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है और उसमें एक सीटिंग से में कर सकते हैं उसमें कंप्लीट क्लियरेंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये हम लोग डेडलाइन- देखें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारा ऐसा मशीन आया है जिनसे आप जैसे बोले शॉक थेरेपी दिया जाता है, कभी कभार वो उनसे भी स्टोन को हटाया जा सकता है। कितना मिनिमल इनसे भी होता है इसमें? ये सब तो अभी जितने भी ट्रीटमेंट है स्टोन के, सब कुछ अभी मिनिमली इन्वेजिव है। पेशाब की यदि नली में यूरेटर में स्टोन है तो हम URS से यूरेट्रोस्कोपी करके वो स्टोन को तोड़ के वो पूरी स्टोन निकल जाती है। और सारे ट्रीटमेंट में सब मिनिमली इन्वेजिव है। अभी के तो कोई भी ट्रीटमेंट में कहीं भी कोई शरीर में कोई बड़ा चीरा लगाने का ज़रूरत नहीं है, जितने भी ऑपरेशंस है अभी। सर्जरी प्रोड्यूसिंग हम लोग देखते हैं कभी कभार पेशेंट को बहुत दिनों तक रेस्ट करना पड़ता है, आप लोगों का क्या परामर्श रहता है? मतलब कितना दिन तक मिनिमम रेस्ट लेना चाहिए सर्जरी के बाद? मैक्सिमम 1 वीक तक। PCNL सर्जरी यदि किसी ने कराए, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, तो मैक्सिमम 1 वीक तक। URS सर्जरी में 2 to 3 डेज और ESWL में 1 to 2 डेज। इसे कोई बहुत लंबा उसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव है। तो 1 वीक में सारे सर्जरी 1 वीक अराउंड अब रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। ओके तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कितने दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है एक पेशेंट का, वो कितने दिन के अंदर नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पर ये तो तब होगा जब आप लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे। कभी कभार पेशेंट लोग ये डर जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें खर्चा हो सकता है, कभी वो डर जाता है कि इनमें पूरा एकदम सर्जरी चलेगा तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा, मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, ये कभी कभार डर रहता है लोगों के दिल में। इस सब को लेकर आप लोगों को क्या परामर्श देना चाहोगे? नहीं, यदि आपके किडनी में या पेशाब की नली में पथरी है तो उसका सही समय पे उपचार बाद कराना सही रहता है, क्योंकि आप यदि उसको इग्नोर करते हो, टालते हो, तो उससे आपकी किडनी डैमेज होती है और उनका जो बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि किडनी डैमेज होगी तो फिर आपका शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ेगा, फिर आपको धीरे धीरे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है मरीज़ों को। इसीलिए इसमें ट्रीटमेंट जितना टाइम से आप कराओ उतना अच्छा है। कभी कभार देखा जाता है कि किडनी में स्टोन भी है और साथ में बुखार भी है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? यदि स्टोन के साथ यदि मरीज़ को बुखार भी आ रहा है, इसका मतलब है कि वो स्टोन कहीं यूरेटर में या नली, पेशाब की नली में फंस गया है, जिसके चलते किडनी में सूजन या किडनी में पस या मवाद भी हो सकता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें तुरंत मरीज़ में सर्जिकली या तो हम उस कंडीशन में यदि मवाद बन जाता है किडनी में तो कमर के भाग में छेद करके परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी PCN डालते हैं, ताकि उनका कंडीशन थोड़ा स्टेबलाइज हो और फिर जो डेफिनेटिव सर्जरी है स्टोन की वो हम बाद में कर सकते हैं। আমরা আলোচনা করছি কিডনিতে স্টোন কিভাবে সেটা থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়। আমরা ডাক্তারবাবুর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললাম, কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা নিজেরা কতটা সচেতন, আমাদের জীবনযাত্রা কতটা ঠিকঠাক রয়েছে, আমাদের ডেলি শিডিউলের মধ্যে আমরা কি এমন কোনো কিছু করছি যেটা প্রতিদিন এই অল্প অল্প করে স্টোনটাকে বাড়তে সাহায্য করছে, বা আমরা হয়তো আমাদের অজান্তেই এমন কোনো কিছু করে ফেলছি যা কিন্তু স্টোন আসার পূর্ব পরিপ্রেক্ষিতে একদম সঠিক কাজ করে ফেলছে। অনেকের দেখা যায় कुछ लोगों का दिखा जाता है कि उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर जो
हजमी घर बांग्ला जिसको बोलते हैं, तो वो अगर नहीं रहता है तो वो चांसेस क्या और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पे उनको भी कभी कभार हम लोग को जो माँ है या फिर घर के जो बुजुर्ग आदमी है, उन लोगों का कुछ लोगों का गॉलब्लैडर ऑपरेशन है, फिर भी वो लोग मतलब उपवास चलाते हैं। तो ये तो आप बंद नहीं कर सकते, जितना भी बोलो आप, वो बंद नहीं होता, पर बंद तो करना चाहिए, क्योंकि जिनको गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है उसको तो ज़्यादा चांसेस रहता है। उन लोगों के लिए क्या परामर्श है? नहीं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है तो उससे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके चलते कि आपको स्टोन बनने का, किडनी स्टोन बनने का। और किडनी में दूसरी कारण है जो स्टोन बनते हैं, जैसे आपका किडनी के इन्फेक्शंस होते हैं, किडनी में पानी की कमी हो गई, जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, सिस्टिनूरिया, हाइपर ऑक्सीलूरिया, या वो सब कारण से गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराया है उसके चलते तो नहीं है कि आपको किडनी में स्टोन बनने का कोई ऐसा रिस्क है। वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा 3 कारण है जो हम लोग को डेली लाइफस्टाइल में तुरंत अभी के अभी ठीक करना चाहिए? ये थोड़ा हम लोग दर्शक को बताइए। पहला तो है कि आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपको पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर रोज़ पीने चाहिए। यदि आप में वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी, तो वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि उसके चलते भी वो होता है। और खाने पीने में नमक कम लेना चाहिए, कैल्शियम की अच्छे मात्रा में कैल्शियम खाना चाहिए। और प्रोटीन जो इंटेक है जैसे मांस मछली में, वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये बेसिक, ये सारे हम जो लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके स्टोन बनने के रिस्क को घटा सकते हैं। कुछ लोगों में ये मीथ बैठ गया है कि अगर किडनी में स्टोन हो गया तो बियर पियो, बियर पीने से किडनी का स्टोन ठीक हो जाता है। ये जो गलत मीथ बैठ गया लोगों के दिल में, ये इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? ये कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, बियर पीने से तो ऐसा नहीं है कि आप बियर पियोगे तो आपको स्टोन निकल जाएगा या स्टोन नहीं बनेगा। आपको पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि बियर पीने से ऐसा है कि वो बियर पीने से आपको पेशाब ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें डायूरेटिक इफेक्ट रहता है, तो पेशाब ज़्यादा आएगा। लेकिन वो डिहाइड्रेशन भी कराता है, पानी की कमी भी कराता है। बियर ज़्यादा पियोगे, पानी की कमी होगी, स्टोन बनने का रिस्क ज़्यादा होगा। और यदि आपको बियर से स्टोन तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप पानी ज़्यादा पियोगे तो स्टोन बनने का रिस्क कम रहेगा, और यदि उसमें आपको हेल्प मिलेगा। बियर से कोई रिलेशन नहीं है कि आप बियर ज़्यादा पियोगे तो आपका स्टोन निकल जाएगा। अच्छा, वाइन कंज्यूम करने से भी क्या स्टोन बनता है? नहीं, वाइन के ऐसा तो नहीं है कि वाइन कंज्यूम करने से स्टोन बनता है, लेकिन वाइन या बियर कुछ भी ऐसा हो तो वो हेल्प नहीं करता है। उल्टा वो क्या होता है, वाइन और बियर पीने से आपको डायूरेटिक इफेक्ट की वजह से पेशाब डिहाइड्रेशन होता है, पेशाब ज़्यादा होता है, तो पानी की मात्रा शरीर में कम होगी, तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क रहता है स्टोन बनने का। कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक आने के बाद ही तुरंत एप्पल साइडर विनीगर या फिर नींबू पानी ये सब कंज्यूम करते हैं। नींबू पानी क्या स्टोन को पिघलने में हेल्प करता है? नींबू पानी पीने से क्या है कि उसमें सिट्रिक एसिड रहती है, तो वो हेल्प करती है। यदि पेशाब में सिट्रिक एसिड बढ़ेगा तो वो आपको स्टोन्स कम, क्योंकि वो कैल्शियम स्टोन्स को चांसेस घटा देती है, कैल्शियम स्टोन्स बनने के। क्योंकि यूरिन में यदि सिट्रिक एसिड रहते हैं तो वो कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस को कम करते हैं। इसलिए नींबू पानी हमें पीना चाहिए। नींबू पानी मदद करती है स्टोन नहीं बनने में। आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि पालंग के बारे में आप बोल रहे थे कि पालंग, टमाटर, ऑक्सलेट प्लस जो खाना है वो क्या एकदम बंद कर देना चाहिए? मतलब स्टोन होने का चांसेस रहता है क्या? नहीं, एकदम बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सही मात्रा में लेना चाहिए। वो मात्रा क्या है? वो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। एक सही जो एक बैलेंस डाइट के रूप में लेना है। आप जैसे सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ पालक की ही सब्जी खाओगे तो उसमें रहता है, लेकिन आपको सब कुछ सारी हरी सब्जी खानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सलेट रिच टमाटर हो गया, पालक हो गया, ये सब नहीं लेना चाहिए। दूध कुछ इफेक्ट पड़ता है? कुछ दूध या फिर कैल्शियम का कुछ खाना, कुछ लोग कैल्शियम के टैबलेट लेते हैं कभी कभार, इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है? कैल्शियम टैबलेट लेने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खाने में कैल्शियम रिच फूड लो, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, योगर्ट हो गया, ये सब लो। तो आपको जो डाइट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्री टैबलेट्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि वो कैल्शियम आप यदि ज़्यादा लो तो वो भी स्टोन बनने को रोकता है, कम स्टोन बनने का रिस्क को घटाता है, यदि कैल्शियम आपके डाइट में अच्छा है तो।
घरेलू कुछ टोटका है क्या डॉक्टर कि इसको अगर हम लोग को सावधानी परखना चाहिए या फिर इसको हमको एकदम प्रीलिमिनरी स्टेज पे इसको हटाना चाहिए, इसके लिए घरेलू कुछ टोटका है जिससे ये ठीक हो सकता है? नहीं, घरेलू तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ कोई ऐसा नहीं है कि उससे चलते स्टोन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ लाइफस्टाइल में आप कुछ चेंजेस लाके यदि आप सुधारते हैं तो आपको स्टोन बनने का रिस्क कम रहता है, जिसमें आपका वज़न, शरीर का वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से बहुत सारा स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। बार बार आपको पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी में स्टोन्स बनते हैं, और ये सारे मुख्य कारण हैं, और ऐसा तो कुछ घरेलू तो नहीं है कुछ भी। आजकल की ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में स्टोन को लेके ऐसा क्या क्या और नया चीज़ आया है जिससे हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम स्टॉप कर सके या फिर इसको शरीर में बनने से हम लोग रोक सके? इन लोगों को क्या आप सलाह देना चाहोगे ये सब चीज़ें? कोई ऐसा मॉडर्न तो नहीं है कोई टेक्निक की जिससे स्टोन बनेगा ही नहीं शरीर में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, यदि मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक इतने सारे हैं कि अब यदि आपके शरीर में कितना भी बड़ा स्टोन हो, कहीं पर भी हो, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं सर्जिकली। अब आज के मॉडर्न एडवांसमेंट में सारे मिनिमली अच्छे सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं, जो आपके किसी भी स्टोन का सही इलाज हो सकता है और आप स्टोन फ्री हो सकते हैं। वो किडनी में, यूरेटर में, पेशाब की थैली में, कहीं भी स्टोन हो, उसका आज के ज़माने में मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, एंडोयूरोलॉजिकल तरीके से बेटर सर्जरी हो सकती है। पीठ में और कमर में दर्द, कभी भी पीठ में कमर में दर्द शुरू हो गया, एकदम तेज दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या वो स्टोन के कारण ही हो रहा है? पीठ में, कमर में दर्द स्टोन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। किडनी का ट्यूमर भी इससे भी हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक पेन यदि है आपको, या तो स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन, ये सब भी कारण की वजह से भी हो सकता है। लेकिन बैक पेन का, स्टोन के मरीजों को भी बैक पेन रहता है, लेकिन बहुत सारे कारण है बैक पेन की जिसकी वजह से बैक पेन रह सकता है। ऐसा 3 कारण बताइए हम दर्शक को जो एकदम से बंद करना चाहिए ताकि हम लोग स्टोन को एकदम रोक सके शरीर में आने से। 3 तो है कि पहला तो आपको पानी ज़्यादा लो, पानी क्योंकि डिहाइड्रेशन सबसे कॉमन कॉज है, शरीर में पानी की कमी के चलते स्टोन बनता है। दूसरा है कि आपको डाइट में कुछ चेंजेस करना है, जैसे नमक कम लेना है, कैल्शियम अच्छे से लेना है, ऑक्सलेट रिच वो खाना कम लेना है, और वज़न घटाना है। वज़न, क्योंकि ओबेसिटी भी एक कारण है स्टोन बनने का। इन्फेक्शन से बचना है, किडनी में इन्फेक्शन होता है उससे बचना है। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप करके आप स्टोन बनने के चांसेस को घटाते हो। कभी कभार देखा जाता है कि पेशेंट ऐसे हालत में है जिनको घर से बाहर निकालना प्रॉब्लम हो रहा है, वो इतना दर्द बढ़ गया है, तो उसको एकदम प्राथमिक स्टेज में उसको ताकि हॉस्पिटल में ले लाया जाए, उसको ट्रीटमेंट चालू किया जाए कम से कम उसके लिए, क्योंकि दर्द हो तो वॉमिटिंग होता है। स्टोन आ गया मतलब वो कभी कभार देखा जाए बहुत वॉमिट, कुछ भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, फिर भी वॉमिटिंग हो रहा है। उस हालत में पेशेंट को क्या किया? इस कंडीशन में तो मरीज़ को एडमिट करके उसको स्टार्टिंग में पेन के दर्द की दवाई देते हैं, कुछ आईवी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उनका एक बार थोड़ा कंडीशन स्टेबल हो जाए, फिर उनका जांच से पता करना है कि स्टोन कहाँ पे है और कितनी साइज़ का है, उसके हिसाब से हम जो भी सर्जरी सूटेबल होगा वो हम प्लान कर पाएंगे। लेकिन यदि मरीज़ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टी और वो बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, तो उसमें तो मरीज़ को एडमिट करके पहले उनको सारे एंटीबायोटिक, दर्द की दवाई से पहले उनको स्टेबल करना है, फिर उनका बाद में उसका जो स्टोन के लिए जो सर्जरी है उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो प्लान करना है। एकदम लास्ट आगे स्टेज पे आगे हम लोग ये আলোচনাকে আমরা একদম শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি আলোচনার। যে আপনারা এতক্ষণ ধরে শুনলেন যে ডাক্তারবাবু আপনাদেরকে বললেন যে কেন কিডনিতে স্টোন হয়, কী কারণের জন্য কিডনিতে স্টোন হয়, কতটা পরিমাণ জল খাওয়া উচিত এবং কোন কোন জিনিসগুলি আমাদের প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবন থেকে বাদ রাখা উচিত। অবশ্যই কিডনি স্টোন যাদের হয়েছে তারা ইতিমধ্যেই কী করবে এবং কোন স্টেজে গেলে দ্রুততার সঙ্গে চিকিৎসা করা উচিত এবং কোন কোন চিকিৎসাগুলি প্রয়োজনীয়
পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হয় প্রাথমিক অবস্থায়, সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত ধারণা দিলেন। গত এই 1 ঘন্টা ধরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার অভিষেক ঝা। আমি শুধুমাত্র একদম শেষ মুহূর্তে এসে আমরা পৌঁছেছি আলোচনার। আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে একদম শেষ একটাই জিনিস জানতে চাইবো, आप दर्शक को बताइए एकदम लास्ट में क्या क्या सलाह रहेगा दर्शकों के लिए, ताकि वो लोग ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखें और ताकि किडनी में स्टोन ना हो, और अपने डेली लाइफ के साथ साथ लोगों को भी कैसे वो लोग सचेतन करें। सबसे पहले तो कि आपको स्टोन्स के लिए कि सबसे ज़्यादा है कि आप पानी अच्छे मात्रा में पानी पीजिए और पेशाब का इन्फेक्शन से बचिए। पेशाब में बार बार इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वज़न आपको कम करना चाहिए, डाइट में कुछ चेंजेस लानी चाहिए, और यदि स्टोन है और दर्द है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही वो छोटा स्टोन है भी हो, फिर भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइमली आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है और उनसे सलाह लेनी है, क्योंकि एक छोटा स्टोन भी कभी कभी वो पूरी किडनी को डैमेज कर देता है और पूरी किडनी ख़राब हो जाती है। इसीलिए स्टोन के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उनसे सलाह लेनी चाहिए, और जो भी उसके लिए सूटेबल इलाज होगा वो करवाना चाहिए। जो लोग बुजुर्ग, एकदम बुजुर्ग आदमी हैं, जिनको अभी फिर से मतलब ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, या फिर उन लोगों का 10 दवाई ऑलरेडी चल रहा है, उनके लिए क्या सलाह है? यदि बहुत बुज़ुर्ग मरीज़ है और उनको किडनी में स्टोन है, उसके चलते बहुत दर्द है और इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम उनको कम से कम एक स्टेंटिंग तो कर ही सकते हैं, जिसको डबल डीजे स्टेंटिंग बोलते हैं। यदि वो सर्जरी के लिए वो मेडिकली फिट नहीं है या सर्जरी के रिस्क को भी वो लेना नहीं चाहते हैं, उस कंडीशन में भी हम कभी किडनी में, क्योंकि स्टोन की वजह से किडनी में रुकावट होती है, पेशाब का फ्लो नहीं अच्छा होता है, पेशाब की नली ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में यदि हम किडनी में एक स्टेंट रख दें तो उनका पेशाब का फ्लो सही हो जाता है। क्रिएटिनिन यदि बढ़ गया है तो वो भी लोअर डाउन हो जाता है। तो इन बूढ़े मरीज़ हैं जिनमें आप कोई सर्जरी नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम उनमें एक डीजे स्टेंटिंग करके उनको स्टेबल तो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, আমরা আলোচনা করেছিলাম গত 1 ঘন্টা ধরে ডাক্তার অভিষেক ঝায়ের সঙ্গে কিডনি স্টোনের বিষয় নিয়ে, এবং আপনারা শুনলেন এতক্ষণ ধরে এই সমস্ত আলোচনার খুঁটিনাটি দিকগুলি কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং কিভাবে নিজেকে সুস্থ রাখা সম্ভব সেই সম্পর্কে অভিষেক ঝা আপনাদেরকে এতক্ষণ ধরে বলছিলেন। আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ। নমস্কার। কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।